یہ کیا کہ انصاف ہے؟ صحیح، کیونکہ ساری رات آپ کے پاس بجلی نہیں تھی. ٹھیک ہے، میں صرف آپ سے درخواست ہے تھوڑا مختصر بات کریں گے، بہت سارے میرے بھائی اور بزرگ بات کر لیں گے. میں بات مختصر کروں گا. ٹھیک ہے. کیس نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے. میں ان ظالم کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ 7.5 روپے ایم پی اے کو فنڈ کے لیے دیتے ہیں. وہ اس پیسے میں کیا کام کرتے ہیں؟ راستے اچھا بس ٹھیک ہے، ہو گیا. میں جواب بناتے ہیں تو ہمارے لیے راستے نہیں ہونا چاہیے. اسی وجہ سے آپ کے ایم این اے یہ کیا کہ انصاف ہے؟ اب مجھے وجہ سمجھ میں آئی امین صاحب، اب مجھے وجہ سمجھ میں آئی کہ یہاں پہ وزیر، وفاقی وزیر، فلانے ڈھمکے ایم این اے ایم پی اے کیوں نہیں آئے. عوام بہت غصے میں ہے. اور آپ مجھے بتائیے، چلے دوبارہ امن کے اوپر جاتے ہیں، امن پہ دوبارہ بات کرتے ہیں. یہ بات بھی بالکل درست ہے، جب یہ سب چیز نہیں ہو گئی، پورے پاکستان کے اندر ہو رہا ہے، بالکل اس میں کوئی لوڈ شیڈنگ ہے، سب کچھ ہے. سوات کی کہانی تو بالکل مختلف ہے نا، یہاں پہ تو بربادی ہو چکی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب یہ معاملات سدھرے تو کیسے سدھرے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیونکہ ہم نے آگے دیکھنا ہے نا. یہ معاملہ بالکل صاف ہے، تب ہی سدھرے گا جس طرح حکمران ہمارے دعوے کر رہے ہیں کہ سوات میں امن و امان قائم ہو گیا ہے. تو اب ان کی اولین ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ آ کے اسی طرح گرین چوک میں اور نشار چوک میں اور پبلک مقامات پر پبلک کو فیس کرے، جو میرے بھائی کے جذبات ہے اس کو فیس کرے، اور جو یہاں کے مسائل ہے ان کے مسائل کے حوالے سے وہ پارلیمنٹ میں آواز اٹھائے، وہ اسمبلی میں آواز اٹھائے، وہ اس کے لیے کچھ تگ و دو کرے. کیونکہ عوامی نمائندگی کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ پبلک کے مسائل معلوم کرے اور ان مسائل کو آگے لے جا کر اس کے لیے کچھ کرے. مجھے افسوس اس بات کی ہے کہ یہاں پہ طالبانائزیشن کے فوراً بعد فوجی آپریشن کا جو سلسلہ تھا، اس میں بار بار وزیر اعظم صاحب یہاں پہ آئے ہیں اور انہوں نے کرفیو کے دوران بند کمرے میں ضلع سوات کے ڈیولپمنٹ کے لیے یا کہ ٹورزم کے لیے یا کہ عوام کے مسائل کے حل کے لیے بے شمار وعدے کیے، بے شمار اعلانات کیے، لیکن ابھی تک ایک ہی وعدہ ان کا ایفا نہیں ہو سکا ہے. بہت بہتر. یہ وعدے کب پورے ہوں گے؟ سوات کی عوام یہ کہتی ہے کہ ان کے عوامی نمائندے ان کے بیچ میں آئیں، ان کے سامنے آئے تاکہ وہ ان سے بات کر سکیں. اب امن ہے تو وہ بھی سامنے آ کر اپنے پر امن لوگوں کو فیس کریں. ایک چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، بات کریں گے کہ سول ایڈمنسٹریشن کتنی کمزور ہے اور کیا پاکستان فوج جب یہاں سے نکلے گی سول ایڈمنسٹریشن اس قابل ہوگی کہ وہ یہاں پر امن قائم کر سکے، اس کو برقرار رکھ سکے، اور ترقی کے لیے سوات آگے کیسے بڑھ سکتا ہے. ایک چھوٹی سی بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد. ہم امریکہ سے 400 سال 200 سال پیچھے، مگر ہم کیوں؟ لاہور سے ہم کیوں پیچھے؟ ہم پٹھان ہیں، پٹھان ہے تو پاکستان ہے. ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سوات کے امن کے حوالے سے خونی چوک جو کہ اب فاروق شہید چوک ہے، گرین چوک، یہاں پہ ہم پروگرام کر رہے ہیں اور یہ پاکستان کے کسی بھی ٹیلی ویژن چینل کا پہلا پروگرام ہے. صرف پروگرام ہی نہیں بلکہ پبلک شو ہے جو کہ ہم یہاں پہ لے کے آئے ہیں آپ کے لیے. میں اس وقت بہت خوش آمدید کہوں گی یہاں میجر جنرل جاوید اقبال صاحب جو کہ جی او سی ہیں سوات میں، خوارزہ خیلہ سے ہمیں جوائن کریں، ان سے ہم بات کرتے ہیں. جیسا میں یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت سوات کے اندر جو حالات ہیں اور شدت پسندی کے بعد جو امن آیا ہے یہ ایک مکمل امن ہے، اور آر یو کانفیڈنٹ کہ واقعی یہ امن ہے جس کو ہم کہہ سکیں جس میں لوگ آزادی کے ساتھ گھوم پھر سکیں اور سکون کا سانس لے سکیں؟ اس میں سب سے پہلے تو میں اوور آل انوائرمنٹ کا ذکر کروں گا کہ کیونکہ جب ہم امن کی بات کرتے ہیں تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہاں پہ پوٹینشیل کتنا ہے اس امن کی انوائرمنٹ کو خراب کرنے کا. تو اس کے متعلق میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس لحاظ سے ہم انشاءاللہ 100% امن کی سٹیج پہ پہنچے ہوئے ہیں، اور اس کے اندر یہاں پہ پوٹینشیل ٹیرورسٹ کے چھپنے کا یا اس کے بعد یہاں پہ غلط قسم کی کارروائیاں کرنے کا وہ بالکل ختم ہے. اور اس کے علاوہ میں ایک تھوڑا سا کہنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ کوئی ون آڈ انسیڈنٹ ٹیررزم کا کہ کوئی ایک سوئسائڈ بامبر کہیں پہ جاتے ہوئے اپنے آپ کو اگر غلط قسم کی کارروائی میں مشغول کر لیتا ہے تو وہ پاکستان میں کیا وہ دنیا کے اندر کہیں پہ بھی رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا. لیکن اوور آل جو انوائرمنٹ ہے
वो बिल्कुल मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि वो बिल्कुल 100% कंड्यूसिव है और अमन है। सही, आप ये कह रहे हैं कि पूरी तरह से अमन हो चुका है यहाँ पे, या पब्लिक भी सुन रही है, सवात की आवाम भी सुन रहे हैं मैंगोरा के। क्या आप ये समझते हैं कि एक फियर मौजूद है शिद्दत पसंदी का सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से कि शायद इतनी मजबूत नहीं हुई यहाँ पे कि वो अमन कायम कर सके? तो क्या कहेंगे इस हवाले से, किस तरह से सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको कॉन्फिडेंस दिया जाए कि वो अमन को बरकरार रख सके पाक फौज के बाद? इसमें 3 फैक्टर्स का मैं जिक्र करना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमने ये देखना है कि पिछले 2 साल के अंदर जब यहाँ पे ऑपरेशन हुआ तो उस वक्त सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की क्या सूरत हाल थी, उनकी क्या कैपेसिटी थी, और पिछले 2 साल के अंदर वो कहाँ से चल के कहाँ तक पहुँचे हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि पिछले 2 साल के अंदर 0 से लेके यहाँ पे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन अभी मालाकंड डिवीज़न की 4 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हर एक जगह के ऊपर मौजूद है। नंबर 1। नंबर 2 चीज़ ये है कि यहाँ पे पुलिस की कैपेसिटी इन्हांसमेंट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा तवज्जो दी गई है और उनकी सबसे पहले तादाद के अंदर 350% के करीब उसमें इजाफा हुआ है। लेडीज़ पुलिस की तादाद जो है वो 4 से लेके 42 तक पहुँची है, और इसके अलावा जो ज़्यादा अहम इजाफा जो है वो उनकी कैपेसिटी में है, उनकी ट्रेनिंग के अंदर है। सही। और तकरीबन यहाँ पे आर्मी ने 1348 के करीब पुलिसमैन की ट्रेनिंग की है। सो मेरे ख्याल के मुताबिक अभी जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं जिस स्टेट के अंदर हैं वो आइडियल नहीं है, लेकिन 2009 के मुकाबले में वो बहुत बेहतर हो चुकी है, और मेरे ख्याल में थोड़ा सा और बेहतरी के साथ वो इस पोजीशन में आ जाएंगे कि वो फौज से ड्यूटीज़ जो हैं वो ये संभाल सकें। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि सवात एक आइलैंड नहीं है। सवात के अमन के ऊपर बहुत से ज़्यादा बाहर वाले फैक्टर्स जो हैं वो भी असरअंदाज होते हैं, जिसमें हमारी जो मगरब की तरफ फाटा की एजेंसीज हैं और उनसे अक्रॉस अफ़गानिस्तान के वो वाले सूबे हैं कि जहाँ पे मसाइल हैं। सो अगर उनको प्रेजेंट स्टेट पे या इससे ज़्यादा बेहतर किया जाता है तो फिर इंशाल्लाह मेरे ख्याल में सवात के अमन को कोई ख़तरा नहीं है, और सिविल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज अपनी ड्यूटीज़ फ़ौज से लेके करने के काबिल ज़रूर हो जाए। तो कब तक फ़ौज यहाँ से चली जाएगी और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के पास पावर्स आएंगी? अभी इसमें मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। वो ये है कि 2009 में जब यहाँ पे ऑपरेशन हुआ तो आपको इल्म है कि यहाँ पे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस रादर गवर्नमेंट की जो रेट है वो 0 थी। सो उस स्टेज से हम चल के आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ इक़दामात के ज़रिए हम उस स्टेज की तरफ जा रहे हैं कि जहाँ पे गवर्नमेंट या जो जिनका ये काम है वो इस चीज़ का फैसला कर सकें कि जी अभी टाइम आ गया है कि हम ये वाली ड्यूटीज़ जो हैं वो हम सिविल एजेंसीज, सिविल डिपार्टमेंट्स जो हैं वो संभालने के काबिल हो चुके हैं। ठीक। इसमें मैंने पहले सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का जिक्र किया, पुलिस का जिक्र किया, उसके साथ साथ और भी सवात के अंदर चीज़ों को नॉर्मलसी पे लाने के लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं, डेवलपमेंट के काफ़ी काम हो रहे हैं, और सिविल सोसाइटी उसके अंदर इंगेज्ड है। वुमेन के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे काम हो रहा है, स्कूल्स की मरम्मत है, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। सो ये सारी की सारी चीज़ें बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता उस स्टेज की तरफ जा रही हैं मेरे ज़ाती ख्याल में, जो कि 2012 या उससे थोड़ा सा आगे पीछे मेरा ख्याल वो टाइम एक ऐसा आएगा कि हुकूमत के पास ये फ्लेक्सिबिलिटी और चॉइस होगा कि वो बैठ के इस चीज़ पे आर्मी की लीडरशिप के साथ वो डिसाइड कर सकें कि जी हम अभी कंट्रोल सिक्योरिटी का हम शिफ्ट करते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। इस पब्लिक शो में आवाम भी आपकी बात सुन रही थी, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। मैं अपनी पब्लिक के ऊपर दोबारा जानना चाहूँगी, आवाम के पास कि वो क्या बात करना चाहते हैं, वो कैसा महसूस करते हैं, क्या वो ये समझते हैं कि वो भरपूर तरीके से
अब पुरएतमाद है, बल्कि फयाज जफर साहब सीनियर सहाफ़ी यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप समझते हैं कि सूरत हाल बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है यहाँ पे? ऐसा है जी, सूरत हाल तो नॉर्मल हो चुकी है, लेकिन यहाँ एक तकिया कलाम है, वो अगर सियासतदान है या कोई भी हो, तकिया कलाम ये है कि स्वात के अवाम ने यहाँ इस्तिकाम पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के बका के लिए कुर्बानी दी है। ये तकिया कलाम तो हर प्रोग्राम हर स्टेज पर है। मसला है कि स्वात के अवाम ने तो कुर्बानी दी, लाखों अवाम ने हिजरत की, नकल मकानी की, स्वात के लोगों को सिला क्या मिला? स्वात में जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है वो है टूरिज्म की इंडस्ट्री। टूरिज्म की इंडस्ट्री यहाँ पर है कालाम, उसके बाद बहरैन, मदियन, पिर म्यादम, पिर मालम जब्बा। ये 4-5 ऐसी जगह है कि हर साल लाखों सियाह, 20-30 लाख सियाह आते थे यहाँ पर। मदियन से लेकर कालाम तक आपकी सड़क है ही नहीं, वो सैलाब में बह गई। क्या पाकिस्तान की हुकूमत के पास इतने पैसे नहीं है कि वो 45 किलोमीटर सड़क बना सके? हुकूमत ने साफ कहा है कि हमारे पास 45 किलोमीटर सड़क बनाने के लिए कोई पैसे नहीं है। तालिबान ने पुल तबाह किए, सैलाब ने पुल तबाह किए। कौन सा पुल है मुझे बता दे स्वात में कि कोई पुल तामीर हुआ? उस सिवाय इसके कि आर्मी ने जो स्टील ब्रिजेस लगाए हैं, कौन सा पुल तामीर किया है? कौन सा स्कूल तामीर किया है? कौन सी सड़क तामीर की है? कुछ भी नहीं हुआ। आप मलम जब्बा जाए, मलम जब में एक चेयर लेफ्ट थी और साथ में एक वहां पर पीटीडीसी की मोटल थी, दोनों तबाह हाल पड़े हैं। मलम जब्बा की सड़क पर जो है कोई गाड़ी नहीं जा सकती। म्यादम की रोड की सूरत हाल यही है। तो इस कुर्बानी के बावजूद अगर ये कुर्बानी स्वात के अवाम ने दी, जिस तरह के सदर साहब ने बताया कि 25,000 रुपए इसका सिला मिला है पर शनाख्ती कार्ड पर, तो स्वात के लोगों को क्या मिला है? कुछ भी नहीं मिला। हुक्मरान ने जो किया है सब झूठ बोल रहे हैं और सिर्फ यही एक तकिया कलाम है कि स्वात के लोग ने पाकिस्तान को बचाने के लिए कुर्बानी दी। अगर स्वात के लोगों ने कुर्बानी दी तो बाकी इलाकों में 4-5 घंटे लोड शेडिंग हो रही है या 20-20 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। अगर कुर्बानी का सिला यही है, अगर यही कुर्बानी का सिला है, तो आइंदा अगर कोई ऐसी आजमाइश आएगी तो स्वात के लोग कभी भी ये कुर्बानी नहीं देंगे। बहुत बेहतर। ये तो बिल्कुल ये दिल के जज्बात है। ये ज़बानी कलामी शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद आलम साहब ये भी सीनियर सहाफ़ी तजिया निगार है। ज़बानी जमा खर्च बहुत हो रहा है, लेकिन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की क्या कमज़ोरी है? क्यों सिविल एडमिनिस्ट्रेशन बाइख्तियार नहीं हो रही? क्यों आपके MNA MPA जो है वो आपके लिए काम नहीं कर रहे और ये पुल नहीं बनवा रहे? वहाँ क्या कमज़ोरी है? जी अस्मा, अभी जो सब लोग बैठे हैं उन्होंने बातें की, लेकिन यहाँ पर जो हमारी मुश्किलात है उसकी बड़ी वजह यह है कि हमारे जो मेंबरानी सूबाई असम्बली है, जो कौमी असम्बली के उम्मीदवार है, मेंबरान है, वो अभी तक सवात उस वक्त तक नहीं आते जब उनका कोई अपना ज़रूरी काम ना हो। अमीर मुकाम शंगला का MNA हो कि वो सवात आते हैं तो हमारी मेंबरान क्यों नहीं आते? एक अलाउद्दीन है, वो तो बीमार है, वो कहते कि मैं कैंसर का मरीज हूँ, आ पड़ा है। दूसरे मुजफ्फर उल मुल्क साहब है, वो आज तक असम्बली में नहीं अमीर होते मुकाम साहब तो इस प्रोग्राम में भी नहीं आए। वो लेकिन वैसे वो आते हैं, आपका कहना है इस प्रोग्राम में नहीं आए वैसे? अच्छा नहीं, वो आते हैं यहाँ पर सवात में जितने भी प्रोग्रामात होते हैं उसमें आते हैं, चाहे स्कूल का प्रोग्राम हो जो भी हो, तो वो नहीं आते। तो इस वजह से हमारी इंतजामिया जो है वो बिल्कुल कमजोर है। वजह क्या है? क्यों कॉन्फिडेंस नहीं है? इसकी बड़ी वजह ये है क्या वो करना नहीं चाहते या उनके पास इख्तियार नहीं है? वाज़ेह सी बात है कि दोनों में से कोई एक चीज होगी, करना नहीं चाहते या इख्तियार नहीं है उनके पास। जी, एक बात तो ये है कि वो बेइख्तियार है, उनके पास इख्तियार नहीं है। उसकी बड़ी वजह यह है कि हमारी मेंबरान जो है, जैसे कि मैंने कहा, वो आते नहीं, वो इंतज़ामिया से पूछते नहीं। अगर वो लोग आए चेक एंड बैलेंस रखे उन पर तो वो लोग पूछेंगे, लेकिन हमारे जो अफसरान है यहाँ पर जो है इंतज़ामी अफसरान है, वो तो हर चीज़ के लिए वह उसमें इस तरह इंटरफेरेंस नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से शिद्दत पसंदों के खिलाफ ऑपरेशन हुआ है। तो अब जो हालात है, जो कंट्रोल है, वो इस वक्त आर्मी के साथ है। तो होना ये चाहिए, जैसे कि अभी जनरल साहब ने कहा कि दिसंबर 12 तक हालात जो है, कंट्रोल जो है, वो इंतजामिया उसकी वो हो जाएगी कि उनको हम सुपर्द कर देंगे। तो उसके बाद इंतजामिया के बाद उसके बाद भी अगर इंतजामिया कमजोर रही तो इसका सारा नजला जो है वो हमारी मेंबरानी सूबाई व कौमी असम्बली पर जाएगा। बिल्कुल, बहुत दुरुस्त बात है, ये बात तो दुरुस्त है। अवामी नेशनल पार्टी से मैं पूछती हूँ कैमूस खान साहब, वैसे आपकी पार्टी भी हुकूमत में है इस वक्त, आपसे भी पूछा जा सकता है, लेकिन सवाल सारे इनकी तरफ आ गए। आपकी हुकूमत है पख्तूनख्वा के अंदर और वो कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन आपकी नज़र नहीं आती, MNA MPA आपके यहाँ पे नहीं आते, अवाम के सामने नहीं आते। ऐसे कैसे सवात में ज़बानी जमा खर्च तो नहीं होगा ना? अवाम तो आपसे डिमांड भी करते हैं कि उनको कुछ डिलीवर भी किया जाए।